خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام۔ عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور آج کا یہ گاڈ از لو پروگرام ہم ایک بار پھر جو 28 اکتوبر کو قصور شہر میں ہم پریئر اینڈ ورشپ ریوائول کرنے کو جا رہے ہیں اس کے تعلق سے ہوگا، اور میرے ساتھ یہاں خدا کے خدام موجود ہیں، تو آئیں خدا کے خدام کو ویلکم کہیں۔ سب سے پہلے پاسٹر ظفر اقبال صاحب، ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاسٹر رستم حمید، ویلکم بردر جی ٹو گاڈ از لو، اور میری بائیں جانب تشریف فرما ہے پاسٹر سلمون سلامت، ویلکم، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں پاسٹر سیمیول اقبال، ویلکم پاسٹر جی ٹو گاڈ از لو۔ اور عزیزو، آج جیسا کہ ہم پہلے بھی پریئر اینڈ ورشپ ریوائول کے تعلق سے آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں کہ پریئر اینڈ ورشپ ریوائول یعنی کہ دعا اور ورشپ کے ذریعہ سے ایک بڑی بیداری ہم ملک پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس وقت اس ماہ میں ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں قصور ڈسٹرکٹ کو، اور قصور شہر کے جو کلیسیائیں ہیں اور سارے ڈسٹرکٹ کی جو کلیسیائیں ہیں اور منسٹریز ہیں وہ اس میں انوالو ہیں، اور آج خدا کے ان خدام سے ہم جانیں گے کہ کیسی ایکسائٹمنٹ ہے اور کیسی تیاری اس کے تعلق سے چل رہی ہے، اور اس کا جو مقصد ہے، جو رویا ہے وہ یہی ہے کہ جب خدا کے لوگ، پاکستان کی کلیسیا جب بیدار ہوگی، خدا کی محبت کی آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی ہوگی، تو جو کلیسیائیں ہیں وہ بڑے ایفیشنٹلی اور بڑے پاورفل طریقے سے مسیح یسوع کی گواہی جب دیں گے، اور کلیسیا جب آگے بڑھے گی اس طور سے، تو ہم ایک بڑی فصل کاٹیں گے، روحوں کی نجات کی بڑی فصل، اور خدا کی بادشاہت کی وسعت کا کام ایک بڑے پیمانے پر ہوگا۔ اور یہ جو ریوائول میٹنگ ہم کرنے کو جا رہے ہیں 28 اکتوبر کو، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم قصور شہر کی کلیسیا کو لے کر ہم مل کر دعا کریں اور خدا کی ورشپ کریں، اور پھر کلام بھی سنیں گے، اور لوگوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، بیماروں کے لیے دعا بھی کریں گے، اور ہم بڑے بڑے معجزات بھی دیکھیں گے۔ اور اس کے تعلق سے آج ہم ایک بار پھر اس پروگرام کو گاڈ از لو میں ہم اس کو ہائی لائٹ کرنے کو جا رہے ہیں، تو اس وقت ہم دعا کریں گے پہلے، اور خدا کے خادم پاسٹر ظفر اقبال ہمیں دعا میں لیڈ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ جی پاسٹر جی۔ آئے ہم سب دعا کریں گے۔ قادر مطلق آسمانی باپ، تیرے پاک بیٹے یسوع المسیح ناصری کے نام میں ہم تیری تعظیم اور تکریم اور ستائش کرتے ہیں گاڈ از لو کے لیے، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا تو نے اپنی محبت کے اس دائرے کو بنی نوع انسان کے لیے قائم کیا۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا پاک خدا، اور خداوند اس بڑے کام کے لیے تو نے اپنے خادم ریورنڈ سالک جون برکت صاحب کو یہ توفیق دی کہ وہ کلیسیاؤں کے اندر، ملکوں کے اندر، قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر تیرے نام کی منادی کر سکیں۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں برکت چینل کے لیے، خدا پاک خدا برکت ٹی وی کی ساری ٹیم کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور بالخصوص تیرے ممسو کے لیے، سالک جون برکت صاحب کے لیے ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اپنے خادم کو بڑی قدرت کے ساتھ روحوں کی نجات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ خدا پاک آج ہم جتنے بھی خدام اس گاڈ از لو پروگرام میں موجود ہیں، ہم خداوند مل کر تیرے خادم کے لیے، ان کی ساری وین کے لیے برکت کی درخواست کرتے ہیں۔
चाहते हैं अपने खादम को कुदरत के साथ रूहों की नजात के लिए इस्तेमाल करते रहिए खुदा खुदा, उनके वसीला से जलाली मोजज़ात होते रहें खुदा पाक, और तेरा पाखरू तेरे खादम के साथ साथ रहे। हम दुआ करते हैं खुदा पाक खुदा 28 अक्टूबर के सारे प्रोग्राम के लिए, प्रेयर एंड वर्शिप रिवाइवल के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा पाक खुदा। और बहुत सारे लोगों को खुदा मैं आज इस प्रेयर में देख रहा हूं खुदा पाक। Yes, Lord. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कसूर फुली तौर पर लोगों से भर चुका है। यीशु के मिरेकल स्पिरिट वहां पर खुदावन तेरी काम कर रही है और तेरा जलाल वहां पर जाहिर हो रहा है। लोग पानी के रहलों की तरह खुदावन पाक खुदा हॉल में तशरीफ ला रहे हैं खुदावन पाक खुदा तेरे जलाली कामों को देखने के लिए। और खुदावन पाक खुदा वहां पर जलाली ख्वायर तेरी वर्शिप करेगी खुदा पाक खुदा। तेरे खुदाम फरिश्तों की मानिंद तेरी वर्शिप करेंगे, इबादत करेंगे और तुझे सजदा ताज़ीम पेश करेंगे। कादर मुतलिक खुदा जब तेरा ममसूल खुदावन वहां पे रूहों की नजात के लिए मैसेज को डिलीवर करेंगे, वहां जलाली काम होंगे। जब तेरा खादम वहां पे खुदावन रूहों की नजात के लिए दुआ करेंगे, बदरू गिरफ्तार आजाद होंगे, नशा की जो लानत के अंदर है वो आजाद होंगे, बीमार शिफा पाएंगे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाएगा। खुदावन हम दुआ करते हैं 28 के सारे प्रोग्राम के लिए मौसम को खुशगवार रखना। खुदावन हर तरह की इब्लिसी इब्नॉर्मैलिटी से सारे प्रोग्राम को अभी से खुदावन तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावन। लोगों को कसरत के साथ लाने वाला है क्योंकि वहां पर तेरी इबादत होगी खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और उनकी सारी टीम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। आज की सारी बातचीत में, आज की रफ़ाकत शफ़क़त में हमारी मदद और रहनुमाई कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पास्टर जी इस ज़बरदस्त दुआ के लिए। और हम यही बिलीव कर रहे हैं कि वहाँ पर खुदा का बड़ा जलाल ज़ाहिर होगा, मौजज़ात ज़हूर पज़ीर होंगे और रूहों की निजात का एक बड़ा काम होगा। और कलीसियाएँ और लीडर्स और खादम और पास्टर्स वहाँ रिवाइव होंगे और ये बेदारी का काम आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम एक वहाँ रवायती कोई क्रूसेड या बड़ी मीटिंग नहीं करना चाहते। हम ऐसी इबादत वहाँ करना चाहते हैं, ऐसे रूहुल कुद्स को हम वहाँ वेलकम करना चाहते हैं कि ये बेदारी का काम वहाँ चलता रहे और कलीसियाएँ बढ़ती रहे, तरक्की पाती जाए, रूहों की निजात का और खुदा की बादशाहत की वुसअत का काम लगातार वहाँ चलता रहे, ताकि हम एक बड़ी फसल कसूर डिस्ट्रिक्ट में काटें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अजीज़ो इस वक्त हम खुदा के खुदाम से जानना चाहते हैं, क्योंकि ये पास्टर साहबान उस कैंपेन का हिस्सा है जिसको पास्टर साजिद और पास्टर इरफान पॉल लीड कर रहे हैं। और इस वक्त मैं चाहूँगा कि पास्टर सलमोन आप शेयर करें कि कैसी एक्साइटमेंट है कसूर शहर में 28 अक्टूबर के ताल्लुक से और लोग क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं बरकत टीवी की सारी टीम का और खुसूसी तौर पर सराब का, जिन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया और वक्त दिया। और मैं बताना चाहता हूँ सर कि जो कसूर सिटी में एक बड़ा रिवाइवल जो आपके ज़रिया से आने को है, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। बहुत सी कलीसियाएँ और बहुत से खुदाम अंत तक मेहनत कर रहे हैं और पास्टर साजिद जो हैं खुदा के अजीम प्रस्तार और खादम, वो हमारे एरिया में लतीफ़पुरा में आए और उन्होंने वहाँ पर 500 से ज़ायद जो ख़ानदान हैं उनको बज़ाते खुद डोर टू डोर विज़िट किया और लोगों ने बड़ा खुशी को फील किया। और बरकत टीवी और गॉड इज़ लव से और सर आपको बहुत ही कसूर सिटी के लोग प्यार करते हैं और मेरा ईमान है कि वहाँ पर बहुत से लोग आएंगे। और लतीफ़पुरा क्या ये कसूर शहर के अंदर है? जी, सिटी के अंदर है सर। ये तकरीबन 10 से 15
मिनट के फासले पर है जो अच्छा। स्टेडियम के। और मेरा ईमान है कि सर बहुत से जो और भी ऐसे गांव हैं और एरियाज़ हैं और भट्टे हैं जहां पर जो ऑलरेडी टीम काम कर रही है। अच्छा, और लतीफ़पुरा में आप खिदमत करते हैं? जी सर, मैं लतीफ़पुरा में एज ए पास्टर खिदमत कर रहा हूँ। और जब पास्टर साजिद साहब के साथ आपने विज़िट किया है तो लोग कितने एक्साइटेड हैं, कितनी लोग किस तौर से इस इवेंट को देख रहे हैं? सर उन्होंने बड़ी खुशी के साथ बरकत टीवी की टीम को, पास्टर साजिद साहब को वेलकम किया Praise और the Lord. उन्होंने अपना जो है ना फुली तौर पर एक कह लें कि 110% जो है पास्टर साहब से वादा किया है कि हम ज़रूर जो है ना प्रोग्राम में शमूलियत करेंगे और अपनी मौज़े, अपनी शिफा और निजात को हासिल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, यानी कि पार्टिसिपेशन करेंगे, आएंगे, ना जी। सिर्फ खुद आएंगे बल्कि अपने साथ अपने अजीज़ो कारब को, अपने रिश्तेदारों को साथ ज़रूर लेके आएंगे। जी यस सर, ज़रूर ज़रूर, वो इसी बात को बड़ी और खुशी से एक्सेप्ट किया, कबूल किया है और वो इस बात को और अपने रिश्तेदारों में, अजीज़ों में फैला रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो अजीज़ो, जैसे कि पास्टर सलमोन साहब ने कहा है कि लोग बड़े एक्साइटेड हैं और इनका ताल्लुक कसूर शहर से है और एक बड़ा एरिया लतीफ़पुरा, जी जो आपने सर। कहा 500 मसीही घर है। यस सर, 500 मसीही घर हैं। वाह, ये तो एक बड़ी तादाद है। तो खुदा उनका शुक्र हो कि लतीफ़पुरा के जो लोग हैं वो बड़े एक्साइटेड हैं इस सारे इवेंट के लिए, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि लोग अभी से दुआएं कर रहे हैं और हम खुदावंद का एक बड़ा जलाल वहाँ देखेंगे। और आप जैसे 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 आप विज़िट करते थे उस विज़िट के दौरान क्या आपको कैसा फील हुआ, आपकी क्या फीलिंग्स थी? सर मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि बरकत टीवी की टीम खुद हमारे पास चल के आई और इवन देन हमें लगा वो खुद पास्टर सालिक साहब आए हैं, उनकी टीम को भी उतना ही ऑनर लोगों ने प्यार और इज़्ज़त दी है सर। और भरपूर तरीक़ेकार से हमने लतीफ़पुरा में वेलकम भी किया खुदा के खादमों का, और जहाँ तक जो टीम थी वो उनको इनवाइट करती रही, बफलेट देती रही और वो भरपूर तरीक़ेकार से इस बात को एक्सेप्ट करते रहे। प्रेज द लॉर्ड। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि Yes, लोग sir. बड़े एक्साइटेड हैं। यस सर। आप कितने एक्साइटेड हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर मैं भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि कसूर सिटी में आप तशरीफ़ ला रहे हैं और मेरा ईमान है और जितने भी कसूर के ईमानदार मसीही बहन भाई हैं वो बड़े ईमान में पुख्ता हैं और खुशी मना रहे हैं कि आप वहाँ पर तशरीफ़ Praise ला the रहे हैं Lord. और बड़ा बाबरकत प्रोग्राम हम वहाँ पर करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अजीज़ो, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं इसलिए कि खुदावंद ने हमारी रहनुमाई की है कि हम ये प्रेयर एंड वर्शिप रिवाइवल का इनेकाद कसूर शहर में करें। और कसूर शहर में माजी में बहुत साल पहले बहुत से हमने इवेंट किए हैं, लेकिन इस नौइयत का इस तरह का बड़ा इवेंट जो कि हम स्टेडियम में करने को जा रहे हैं, पहले कभी नहीं हमने किया। तो इस दफ़ा हम इसलिए इस बड़े इवेंट को कसूर शहर में लेके जा रहे हैं ताकि हम सब मिलकर वहाँ खुदा का बड़ा बड़ा जलाल देखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदा के खुदाम भी बहुत एक्साइटेड हैं, लोग भी एक्साइटेड हैं, और इसके लिए हम जब एक्सपेक्टेशंस लोगों की हाई होती हैं और फिर उसी एक्सपेक्टेशन के साथ जब हम खुदा के हुजूर दुआएं करते हैं और एक भूख और प्यास रखते हैं और एक पैशन के साथ, एक शिद्दत के साथ हम जब दुआ करते हैं तो ज़रूर खुदा हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कसूर शहर के जितने लोग हैं और जितने उसके गिरदोनवा में देहात हैं और शहर हैं, आप सब दुआ करते रहें और एक शिद्दत के साथ, एक भूख और प्यास के साथ जब आप मांगेंगे तो ज़रूर ही खुदा के जलाल को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो और भी खुदा के खुदाम से सुनेंगे कि कैसी ये सारी कैंपेन 28 अक्टूबर के ताल्लुक से चल रही है। देखते रहें, गॉड इज़ लव।
वेलकम बैक। अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले हम पास्टर सलमोन सलामत साहब से सुन रहे थे कि कैसे उनके एरिया के लोग एक्साइटेड हैं 28 अक्टूबर के लिए। और अब मैं खुदा के खादम पास्टर रुस्तम हमीद साहब से भी जानना चाहूँगा कि इनकी इन्वॉल्वमेंट इस सारी कैंपेन में कैसी है और कितनी है, और आपके चर्च के लोग कितने एक्साइटेड हैं। जी ब्रदर। आमीन। थैंक यू सो मच सर। मसीह में आप सबकी सलामती हो। और मेरे लिए आज ये बड़ी ऑनर की बात है, फ़ख्र की बात है कि मैं इतने अजीम खादम के साथ बैठा हूँ। और गॉड इज़ लव प्रोग्राम में खुदा के अजीम खादम ने मुझे मौका दिया है। थैंक यू सो मच सर। खुदामदा आपको और गॉड इज़ लव बरकत टीवी की सारी टीम को बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू। और प्रोग्राम के हवाले से सर बात करूंगा। खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि खुदा के अजीम खादम पास्टर सालब जोन बरकत साहब ज़िला कसूर में हमारे पास तशरीफ़ ला रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आज से मैक्सिमम कुछ 15 दिन पहले से ही हम जो है प्रोग्राम की कंपेन कर रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, कसूर सिटी के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जैसे कि पत्तो, ठींग मोड़, चूड़ियाँ, डिंगशा, कच्चा पका, रहने वाला, साद, और ये सारे इलाकों में हमने पास्टर साजिद तनवीर साहब के साथ और फान पॉल साहब के साथ हमने विज़िट किया है और अभी स्टिल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर ये है कि जिस भी गांव में हम जाते हैं उनको पता चलता है बरकत टीवी से टीम आई है, लोग एक्स्ट्रा हमसे मोहब्बत करते हैं, एक्स्ट्रा प्यार करते हैं बरकत टीवी से। और सर आपसे लोग बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। ये खुदाम की शुक्रगुजारी है। और जिसको हम मैसेज देते हैं, जिसको हम 28 तारीख के प्रोग्राम के हवाले से बताते हैं, वो उसके बाद ये कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी, अब हमने लोगों को कैसे बताना है। Praise the Lord, तो praise इस the बात से दिल बड़ा खुश होता है कि खुदाम की शुक्रगुजारी है। उसी टाइम वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और ये साथ में जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आगे लोगों को बताएंगे प्रोग्राम के Praise हवाले से। और मेरा ईमान है कि 28 तारीख को सिर्फ स्टेडियम ही नहीं भरेगा बल्कि बाहर भी लोग खड़े होंगे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आप सब जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में जाकर लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं, फ्लायर्स बांट रहे हैं, आपकी भी मेहनत और दुआएं इसमें शामिल हैं। और हम बहुत एक्साइटेड हैं और खुदा उनके बड़े जलाल को वहाँ एक्सपीरियंस करेंगे। आप क्या कोऑर्डिनेशन मीटिंग में थे? Yes, sir. जब पास्टर्स कोऑर्डिनेशन Yes, मीटिंग sir, हुई, yes, sir. तो उसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन जो मीटिंग है वहाँ से ही हमें ये जज्बा, ये हमारे अंदर एक रिवाइवल, और ये हमने वहाँ पे ही फैसला कर लिया था कि हम ये मीटिंग को, इस प्रोग्राम को मिल के करेंगे। और मैं उस प्रोग्राम के हवाले से बड़ा एक्साइटेड था आपकी सारी बातों से, और आपका जो मैसेज था वहाँ पे उसने हमें बड़ी दिलेरी दी है। और खुदा के शुक्र से हम उस मैसेज के वसीला से आज उठ खड़े हुए हैं और बरकत टीवी की टीम के साथ हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमेशा रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम हमेशा के लिए मसीह में एक हैं। Yes, sir. और हमें अब मसीह की मोहब्बत से कोई जुदा नहीं कर सकता। Praise God, sir. प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ो, आज हमारा जो कलीसिया पाकिस्तान में जो खुदा ने मुझे बोझ दिया है और विजन दिया है, वो यही कि अब हम बलूगत की तरफ बढ़ें, बालिग, कलीसिया पाकिस्तान बालिग हो, और हम इस तौर से खुदावंद की वर्शिप करें और कलीसिया इस तौर से तरक्की करे कि हम खुदा के एक बड़े जलाल को ना सिर्फ अपनी इबादत में एक्सपीरियंस करें, बल्कि अपनी कलीसिया में, अपने लोगों में, मसीहियों में, ख़ानदानों में, घरों में लोग इस कदर मसीह की मोहब्बत से भरे हुए हों और उसके इल्म से भरे हुए हों, उसके मुकाशफात से भरे हों। क्योंकि जो रिवाइवल है वो बेसिकली मसीह की जो हजूरी है, मामूरी है, और मसीह का जो किरदार हमें खुदा के कलाम में से नज़र आता है। जब कलीसिया इस तौर से मसीह के कद के अंदाज़ा तक पहुँचेगी तो फिर वहाँ ज़रूर ही बेदारी होगी। तो फिर सिर्फ खुदाम का या चर्च लीडर्स का या जो पास्टर्स विज़िट करते हैं, सिर्फ उन्हीं का काम मसीह की मोहब्बत को फैलाने का नहीं होगा, बल्कि हर ईमानदार इन्वॉल्व होगा। जब हर ईमानदार यीशु की मोहब्बत और उसकी आग से भरा हुआ होगा,
तो वो मसीह का सच्चा गवाह होगा और वो आगे जाएगा और फिर वो आगे और भेड़ों को अपने साथ लेकर आएगा। जैसे कि एक बड़ा ही ये मशहूर बात, और अक्सर जब पास्टर्स कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसमें ये कई दफ़ा इस बात को दोहराया जाता है कि जो चरवाहा है वो भेड़ें पैदा नहीं करते, अब बल्कि भेड़ों को पैदा करती हैं। तो ये अब कलीसिया का काम है कि हम इस कदर इस तौर से तरक्की करें मसीह में, और मसीह के इल्म से, मसीह के मुकाशफात से, मसीह जिसके ताल्लुक से यीशु ने कलीसिया के ताल्लुक से कहा मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। आप बेसिकली मसीह वहाँ एक ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी की वहाँ तस्वीर खींच रहा है कि कलीसिया इस कदर मुझ में बनी होगी, इस कदर मेरी मानद होगी और स्ट्रॉन्ग होगी, और जब कलीसिया आगे बढ़ेगी तो मसीह की बादशाहत की वुसअत होगी, मसीह की मोहब्बत फैलेगी, और जो इब्लीस ने जो अपने कले जमाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, उन कलों को वो ढा देगी और वहाँ पर मसीह की बादशाहत आएगी। और मसीह की जो इंजील है वो जब फैलेगी, मसीह की मोहब्बत जब फैलेगी, तो लोग अपने दिल उसको देंगे और जिंदगियां ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, बदल जाएंगी। आज हम मुल्क पाकिस्तान में मसीह की मोहब्बत को फैलाना चाहते हैं, क्योंकि जब मसीह की मोहब्बत दिलों में आ जाएगी तो फिर नफरत जाती रहेगी, फिर ये सारी जो कुदरतें हैं और लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, ख़त्म हो जाएंगे और मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती होगी, और वो यीशु मसीह की मोहब्बत से ही मुमकिन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच भाई रुस्तम, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं, और इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कसूर शहर के लोग बहुत एक्साइटेड है। 28 अक्टूबर को शाम 5 बजे ये इबादत हम शुरू करेंगे। बेसिकली 1 घंटा पहले ही, बल्कि मैं पास्टर साहब को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, तमाम पास्टर साहिबान को, लीडर्स को, कि आप 4 बजे ही अपनी कलीसियाओं को लेकर वहाँ आ जाएं, ताकि हम इंटरसेसरी प्रेयर्स के साथ शुरू करेंगे। शफाअत के साथ हम बेसिकली 4 बजे शुरू करेंगे, क्योंकि जो टाइम अनाउंस किया जा रहा है वो शाम 5 बजे का है, लेकिन हम 4 बजे ही शफाअत का इंटरसेसरी प्रेयर्स का आगाज़ कर देंगे, और जो सब पासबान है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे, ताकि ठीक 5 बजे हम वर्शिप का आगाज़ करेंगे। और इस वर्शिप में ना सिर्फ हाउस ऑफ प्रेयर की वर्शिप टीम होगी जिसमें पास्टर साजिद हैं, पास्टर मौज़म है, बल्कि हमारी वर्शिप टीम का हिस्सा एंजला रॉबिन भी है और कैरिस मसीह भी हैं, जो एक बड़े ज़बरदस्त वर्शिपर्स हैं, वो भी होंगे, और फिर खुदा की खादमा तहमीना तारक भी होंगी। तो आप ज़रूर वक्त पर आएँ, और इस वर्शिप में जब हम सब वर्शिप में इन्वॉल्व होंगे, और ये आपका वहाँ टाइम पर पहुँचना नहायत ही ज़रूरी है, और जब आप टाइम पर पहुँचेंगे और शुरू से ही वर्शिप में और दुआ में जब आप भीगे हुए होंगे तो आप पाकरू से भरे हुए होंगे, और जब कलाम सुनाया जाएगा और जब दुआ की जाएगी तो ज़रूर ही खुदा का जलाल जाहिर होगा और मौजज़ात रूनुमा होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और इस वक्त जैसे कि मैंने जिक्र किया कि तहमीना तारक हमारी वर्शिप टीम का हिस्सा होंगी और हमारे साथ मिलकर वहाँ वर्शिप करेंगी। तो इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हम एक गीत सुने खुदा की खादमा तहमीना तारक से, तो आए इस गीत को सुने। यही दुआ है रख लहू के नीचे, यही सदा है रख लहू के नीचे। रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, रख लहू के नीचे, नीचे रख
यीशु के पीछे पीछे पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे यही है आशा अपनी मसीह का चेहरा देखे मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे लहू ये पवित्र यहोवा का है लहू ये खुदावन मसीहा का है लहू ये पवित्र यहोवा का है लहू ये खुदावन मसीहा का है लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है लहू ही में शक्ति मसीह का मसा है खुदा के बरे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे लहू को पुकारे लहू से धुले लहू की हिफाजत में चलते चले लहू को पुकारे लहू से धुले लहू की हिफाजत में चलते चले लहू से मोहब्बत की कलियां खिले लहू से मोहब्बत की कलियां खिले खुदा के बरे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे लहू ही गुनाहों को देता मिटा लहू ही बीमारों को देता शिफा लहू ही गुनाहों को देता मिटा लहू ही बीमारों को देता शिफा लहू ही यहोवा से देता मिला लहू ही यहोवा से देता मिला खुदा के बरे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे लहू के नीचे नीचे यीशु के पीछे पीछे पवित्र आत्मा के संग मसीह के पीछे पीछे यही है आशा अपनी मसीह का चेहरा देखे मोहब्बत से भरा वो खुदा का बर्रा देखे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे रख लहू के नीचे नीचे रख लहू के नीचे वेलकम बैक अजीज़ो, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने तहमीना तारक का एक खूबसूरत गीत सुना, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि 28 अक्टूबर की इबादत में हाउस ऑफ प्रेयर की जो वर्शिप टीम है उसके साथ तहमीना तारक भी हमारे साथ वहाँ मौजूद होंगी वर्शिप करने के लिए। तो आप सब से मेरी यही गुजारिश है कि सब वक्त पर आएँ, टाइम पर आएँ, और ख़ासकर जो मैंने पास्टर साहिबान को मैं चाहता हूँ कि वो 4 बजे ही अपनी कलीसियाओं को लेकर आ जाए, ताकि 4 बजे हम इंटरसेसरी प्रेयर्स शफायत शुरू कर देंगे और फिर ठीक 5 बजे वर्शिप का आगाज़ होगा। और मेरा ईमान है कि हम एक जलाली इबादत में उस वक़्त इन्वॉल्व होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस वक्त भाई रुस्तम और कुछ कहना चाहते हैं? जी ब्रदर जी। थैंक यू सो मच सर। सर मैं ये चाहता हूँ कि 28 तारीख के बाद ये प्रोग्राम जो है ये यहाँ पे ना बस बैंड अप हो जाए। खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर सालब जॉन बरकत साहब ज़िला कसूर में हर महीने एक इवेंट करवाते रहें, ताकि ये आग जो है ये कसूर में लगी रहे। चले खुदावंद की जो मर्जी, जैसे खुदावंद की रहनुमाई होगी हम ज़रूर जैसे खुदावंद कहेगा। और खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए कि
ना सिर्फ ज़िला कसूर में बल्कि दूसरे मुख्तलिफ ज़िलों से भी लोग आएंगे इस बड़े क्रूसड में, इस बड़ी इबादत में, और खुदावंद के अज़ीम खादम सालक जॉन बरकत साहब के वसीला से लोग बरकत पाएंगे और वहाँ पर लोग अपनी आंखों से देखेंगे कि खुदा के बंदा को खुदा अपने जलाल के लिए किस कदर इस्तेमाल करता है। Praise the Lord. और ज़िला कसूर के हर इलाके में खुदावंद की शुक्रगुजारी ये पैगाम पहुंच चुका है, और यहाँ पे नहीं पहुंचा वहाँ पे सारी टीम, बरकत टीवी की जो टीम है ये इस पैगाम को लेके जा रहे हैं, और लोग जो है वो इस बात से बड़ा खुश हैं, पुरजोश हैं, एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम के लिए। और मैं स्पेशल साजिद तनवीर साहब का और डॉक्टर इरफान पॉल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके साथ सही ये प्रोग्राम ज़िला कसूर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। Praise the Lord. Thank you so much, Brother Rustam. तो अभी मैं चाहूँगा कि पास्टर जफर इकबाल साहब भी अपने ख्यालात का इजहार करें। जी ब्रदर जी। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि हम तो बहुत ही एक्साइटेड हैं सर, हमारी कलीसियाँ एक्साइटेड हैं कि कसूर में एक बड़ी बिग जो है रिवाइवल पे ये काम होने वाला है, बेदारी का काम। Amen. और ये मैं भी चाहता हूँ कि ये एक ही बिग क्रूसेड ना हो, बल्कि होते ही रहें और खुदावंद यीशु आमीन। मसीह को जलाल मिलता रहे, आमीन आमीन और आमीन। वो भी आपके वसीला से। Amen. खुदावन की जैसे मर्जी हो। हाँ जी। तो बहुत सारे लोग जो हैं इस प्रोग्राम में आएंगे, Amen. क्योंकि जब मैंने पहली कोऑर्डिनेशन मीटिंग अटेंड की थी तो वहाँ पे आपका जो मैंने पैशन देखा था, जज्बा देखा था कि आप किस तरह कलाम शेयर कर रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे Praise God. और मैं रूह कुछ की कुदरत से भर गया था। आपने ये फरमाया था वहाँ पे कि जितनी देर तक आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी खिदमत के अंदर खुदा के पाक रूह की प्रेजेंस नहीं है, हजूरी नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, Yeah. Amen. आप रूहों को नहीं जीत सकते। सही। और आपने बताया कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह जो खुदा के बेटे हैं वो अपने लोगों के लिए, अपने हवारियों के लिए दुआ कर रहे हैं, उसी तरह हमें भी दुआ करनी है अपनी कलीसिया के लिए। आमीन। जो खुदा ने लोग हमें दिए हैं, हमने भी उनके लिए दुआ करनी है, सही। ताकि उनकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह का ज़हूर जो है वो इसी तरह कायम रहे। आमीन। और उनकी जिंदगी के अंदर जब मसीह का ज़हूर कायम होगा तो वो बहुत सारी दूसरी जो जाने हैं, दूसरे जो लोग हैं जो खुदा से दूर हैं, उनको भी वो खुदा के पास लाएंगे। आमीन। और आपने बड़ी अच्छी वहां पे बातें शेयर की हैं, मुझे वहां पर बड़ा ही जज्बा मिला है, आपको सुनकर बरकत मिली है। और मैंने अपने इंटरव्यू में भी वहाँ पे शेयर किया था कि खुदा के खादम के वसीला से खुदा कसूर के लोगों के लिए जलाली काम करेगा। वहाँ पर बड़े मिरकल होंगे और बदरू गिरफ्तार आज़ाद होंगे और बीमार शिफा पाएंगे। हर तरह की अंदरूनी और बैरूनी जो बीमारियां हैं, जो बैड स्पिरिट्स हैं, लोगों के अंदर से जाएंगी वर्शिप के वसीला से और दुआ और कलाम के वसीला से। आमीन। क्योंकि मेरा इस बात पर ईमान है कि जब खुदा के खादम हालेलुया का नारा लगाते हैं तो बुदरूहें कांप जाती हैं। Praise the Lord, praise the Lord. कि Hallelujah. खुदा ने अपने ममसू को ये मस्सा दिया हुआ है, आमीन। ये Spirit सब दी कुछ है। उसके फजल की ये बदौलत। उसका रूह है जो अपने खादम के साथ काम करता है। आमीन आमीन। और जब मैं इनको सुनता हूं मेरे अंदर भी एक बड़ा वलवला और जज्बा पैदा होता है कि हम भी इस तरह खुदा उनके नाम को चला। Praise the Lord, praise हमारी the Lord. कलीसियाएं, हमारी फैमिली, तब से उसी दिन से हम दुआ कर रहे हैं। तो Praise भाई ने मुझे पूछा कि आपके क्या इस प्रोग्राम के हवाला से तासरात हैं, तो मैंने कहा कि हम सबसे पहले हम दुआ करेंगे खुदा के। आमीन। मेरी फैमिली, मेरे बीवी बच्चे, मेरी वालिदा, मेरी बहन भाई, मेरी चर्च टीम, हमारे लोग, हम दुआ करेंगे और वाकई ही हम दुआ कर रहे हैं। Praise the Lord, praise the Lord. खुदा इस प्रोग्राम को वाकई ही कामयाब करेगा और आमीन। जलाल वहां पर जाहिर होगा। फरिश्ते हमारे साथ मिलकर आमीन। वहां पर खुदा की वर्शिप करेंगे Amen. और बर्रे का तख्त वहां पर लगेगा Hallelujah. और कौमें उसकी रोशनी को देखेंगे आमीन कि आमीन। खुदा जो है हमारी रोशनी और हमारी ताकत है।
Praise the Lord. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं जगह डॉक्टर साहब से, डॉक्टर इरफान साहब से पूछता था कौन सी जगह पे ये सर ये प्रोग्राम है, तो वो मुझे कहते हैं कि दुआ करें कि जो मैं चाहता हूँ वो जगह मिल जाए। मैंने उसी दिन मैंने कहा कब दुआ करेंगे, अभी करेंगे। मैंने फोन पे उनके साथ बात करते हुए मैंने दुआ की और मैं ईमान में महसूस कर रहा था कि जब ये डॉक्टर इरफान साहब और इनकी सारी टीम वहां पे जाएंगी इजाजत लेने के लिए और इजाजत मिल जाएगी। आमीन, स्पोर्ट्स आमीन। कॉम्प्लेक्स में ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा रिवाइवल क्रूसेड होने जा रहा है। Amen, और कसूर के लोग बड़े एक्साइटेड हैं, हम एक्साइटेड हैं, पास्टर जितने भी हैं वो मेहनत कर रहे हैं कलीसिया को लाने के लिए वहां पर, और जलाली काम वहां पर होंगे। आमीन, और आमीन, आपको आमीन। मैं अभी से ही कंग्रेचुलेट करता हूं Thank you, brother. कि Thank you. आपको खुदा से बड़ी कुदरत के साथ वहां पर आमीन, आमीन। और Thank you. वर्शिप टीम को खुदा बड़ी कुदरत के साथ वहां पर इस्तेमाल करेगा। और Hallelujah. जो जिस किसी पास्टर का हिस्सा है वहां पर खुदा उन सबको अपने जलाल पे इस्तेमाल करेगा। आमीन, आमीन, और आमीन। लोग देखेंगे खुदा के जलाल। Praise the Lord, praise the Lord. God Praise bless the you, Lord. sir. Thank you, God thank bless you, you, sir. thank you आपकी दुआओं के लिए और सारी काविश के लिए जो कैंपेन टीम के साथ आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। और अभी आखिर में हम सुनेंगे पास्टर सैमुअल इकबाल साहब से। जी पास्टर सैमुअल, आप क्या कहना चाहते हैं? उसी के नाम में तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से इस्लाम। मैं पादरी साहब आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज सुबह हमें ये मौका बख्शा कि हम गॉड इज़ लव में आकर 28 अक्टूबर के प्रोग्राम के हवाले से बातचीत कर सकें। तो सर मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम कैंपेन कर रहे हैं तो लोगों की खुशी की इंतहा नहीं है। लोग खुदा के लिए और खुदा के कलाम के लिए इस कदर एक्साइटेड हैं कि वो हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि ये आपका प्रोग्राम नहीं, ये हमारा प्रोग्राम है। Praise the Lord. और इस प्रोग्राम के लिए कसूर शहर के जब गिरदो नवाह में हम गए हैं, लोगों ने मोहब्बत दिखाई है और फूलों की पत्तियों से वेलकम किया है। और सबसे बढ़कर ये बात है कि लोग इस बात के लिए खुश हैं कि आप कसूर शहर में आ रहे हैं। Praise the Lord. और ये हमारे लिए भी, हमारे चर्च के लिए भी बड़ी खुशी और हौसले की बात है कि खुदा के अजीम खादिम हमारे पास वहाँ पर कसूर शहर में आ रहे हैं। Praise the Lord. और आपको मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर, आप कैंपेन टीम के साथ और आप सबको भी, तो आप को कैसा लग रहा है कैंपेन टीम के साथ इस तरह से इस सारी जो मेहनत आप कर रहे हैं? सर मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ और मैं बहुत देर से इस प्रोग्राम के लिए, चूँकि मुझे डॉक्टर साहब ने कहा हुआ था, पहले से इन्फॉर्म किया था कि आपकी ये ड्यूटी होगी, आपने हमारे साथ चलना है। तो मैं तो इस टीम का हिस्सा बन के बड़ी बरकत पा रहा हूँ और बड़ी बरकत महसूस कर रहा Praise हूँ। the और यकीनन मल्टीप्लाइनेशन खिदमत के अंदर मिल रही है और खिदमत बढ़ रही है इससे। और टीम के साथ, चूँकि टीम बाबरकत है और उनके साथ काम करके बड़ी खुशी मिल रही है और बड़ी बरकत मिल रही है। Praise the और दुआ भी है कि खुदा इसी तरह हमें आपके साथ मिलकर अपने जलाल के लिए खुदा हमें इस्तेमाल करता है। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। अज़ीज़ो, इस वक्त आखिर में हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा की ये खुदाम ना सिर्फ ये बल्कि बरकत टीवी की टीम, पास्टर साजिद, पास्टर इरफान पॉल और बाकी जितने पास्टर साहिबान कसूर शहर और कसूर डिस्ट्रिक्ट के हैं, मुख्तलिफ देहातों से इन्वॉल्व हैं। बहुत से लोग इसमें अभी से ही ना सिर्फ दुआ कर रहे हैं बल्कि कैंपेन जारी है, लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है और चैनल के ज़रिए से भी बताया जा रहा है। तो याद रखें 28 अक्टूबर को शाम 5 बजे का वक्त है, लेकिन हम 4 बजे ही वहाँ दुआ करना शुरू कर देंगे। 4 बजे खुदा के खुदाम और मुख्तलिफ जो ईमानदार हैं वो शफाअत करना शुरू कर देंगे। इंटरसेसरी प्रेयर्स का आगाज़ 4 बजे ही हो जाएगा। तो इसलिए आप जितना जल्दी टाइम पर आएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छी जगह पर आगे बैठ सकेंगे। और फिर उसके बाद ठीक 5 बजे वर्शिप का आगाज़ होगा। और जैसे कहा गया है कि ना सिर्फ हाउस ऑफ प्रेयर की वर्शिप टीम जिसमें पास्टर साजिद, पास्टर मौज़म उसको लीड करेंगे और उसके साथ एंजेला रॉबिन भी होंगी हमारी टीम का हिस्सा,
कैरिस मसीह भी होंगे और फिर तहमीना तारिक भी वहाँ वर्शिप में लीड करेंगी। तो ठीक वक्त पर आएँ ताकि दुआओं के साथ जब आगाज़ हो तो आप सब वर्शिप में भी साथ इन्वॉल्व हो, और फिर हम ज़रूर जब मिलकर उसकी वर्शिप करते हैं, जैसे कलाम में लिखा है कि खुदा अपने लोगों की हमदो सना पर तख्त नशीं होता है, तो जब वो तख्त नशीं होगा उसका इख्तियार, उसकी कुदरत वहाँ काम करेगी और हम खुदा के बड़े जलाल को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त आखिर में हम 28 अक्टूबर की इस इबादत को खुदा उनके हाथों में देंगे, सारे इंतज़ामात को खुदा उनके हाथों में देंगे, और आपके लिए भी अभी हम दुआ करेंगे जो बीमार है या किसी ज़रूरत में है या कोई मौजज़ा खुदा उनसे चाहते हैं। तो आए अज़ीज़ो हम दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा बाप, हमारे दिल तेरे लिए शुक्रगुजारी से भरे हुए, तेरा शुक्र तेरे इन खुदाम के लिए और इस पैशन के लिए और इस खुदाबंद एक्साइटमेंट के लिए जो तूने हमें दी है 28 अक्टूबर के लिए। 28 अक्टूबर को जब शहर कसूर में हम शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उस स्टेडियम में जब जमा हो तो उस सारी इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हाथों में दे देते हैं, तमाम इंतज़ामात को तेरे हाथों में दे देते हैं। खुदा पाकरू तू हमारी रहनुमाई करना और तू वहाँ हमारी मुहाफ़ज़त करना, तेरी मुहाफ़ज़त को मांग लेते हैं। और इसी तरह से खुदावंद एक एक इंतज़ाम बड़ी परफेक्शन के साथ हो और बड़ी एक्सलेंस के साथ हो, ताकि सारे जो इंतज़ामात हैं बड़े अच्छे तरीके से हों। और फिर खुदावंद ये भी मेहनत है कि तू अपने बड़े जलाल को वहाँ ज़ाहिर करना, तेरा कलाम वहाँ नाजिल हो और मौजज़ात की एक बारिश हो, और खुदावंद वहाँ एक बड़ी बेदारी का काम हो, रूहों की निजात का एक बड़ा काम हो यीशु मसीह के नाम में। और इसी तरह से खुदावंद हम मौसम को भी तेरे हाथों में देते हैं, मौसम खुशगवार हो और किसी तरह से भी वहाँ कोई और ऐसा वाक़या ना हो, कोई ऐसी ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस ना हो, तो ताकि लोग आसानी के साथ शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आ सकें, उस स्टेडियम में आकर तेरी इबादत और तेरी वर्शिप कर सके और तेरे जलाल को देख सके। यीशु मसीह के नाम में इस सारी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं। और इस वक्त जितने लोग इस वक्त तेरे हुजूर में अपनी दरख्वास्तों को रखे हुए हैं, जो बीमार हैं वो इसी लम्हा अपनी तमाम बीमारियों से शिफा पाएं, और जो और दरख्वास्तें तेरे हुजूर में रखे हुए हैं इनकी एक एक दरख्वास्त को सुन और बड़े बड़े मौजज़े अपने लोगों की ज़िंदगियों में कर। खुदा पाकरू छू एक एक को और ब्लेस कर दे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। और हम सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो मैं खुदा की खुदाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच पास्टर ज़फ़र इकबाल साहब आपके आने के लिए। पास्टर रुस्तम साहब आपके भी शुक्रगुजार हैं, इस तरह से पास्टर सलमान साहब आपके भी, थैंक यू सर से पास्टर सैमुअल साहब, थैंक यू सो मच। तो जीजो कल मिलेंगे एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ, और इसी तरह से 28 अक्टूबर को अपनी दुआ में रखें, और हम मिलेंगे आपसे 28 अक्टूबर को और खुदा के बड़े जलाल को वहाँ एक्सपीरियंस करेंगे। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।